یہ تو صحیح آخر نوجوانوں کا کریکٹر کیا تھا، ان کی صفات کیا تھی، ان کی کوالٹیاں کیا تھی، پوچھو کیپٹن اقبال سے۔ کیپٹن اقبال نے کہا تھا ہمارے نوجوان تھے کیسے؟ سنو، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا راہوں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کے، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کے، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور جو مرتے تھے تو یا رسول اللہ تیرے نام کی عظمت کے لیے چل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اور جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، جس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم تو آپ سے لڑ جاتے تھے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، میرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ ہمارے نوجوان ایسے، ہمارے نوجوان ریاشی کرنے والے جملہ معزز محترم معقر علماء ملت اسلامیہ، خصوصیت کے ساتھ صدر اجلاس فکر اخلاق محبت فخر القرہ فضیلت الشیخ حضرت علامہ قاری ذاکر علی خان صاحب کی بلاک قادری پرنسپل مدرسہ حنفیہ ثار القرآن لکھنؤ، دیگر ہمارے تمام تر علماء، شعراء، ائمہ مساجد، معزز طالبان علوم نبویہ، محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر سے آپ تمام حضرات بہت ہی اچھی نعتیں محبتیں سماعت کر رہے تھے، مجھ سے بیشتر بہت ہی بہترین خطاب عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مرتضیٰ شریفی صاحب کے ملاقات نے سماعت کر لیا، درمیان میں جناب اسمی رضا الہ آبادی کی بہترین نعتیں آپ نے سماعت کی۔ میں رہنے والا تو پرتاپ گڑھ کا ہوں، لیکن آج ایسا اتفاق ہے کہ کل رات میں سنبل پر اڑیسہ میں تھا تو کوئی صورت نہیں بنی، اور تقریباً میں نے 1200 کلومیٹر کا سفر بائی روڈ، جس کی وجہ سے طبیعت بھی تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی۔ بہرحال اللہ مزاج نہیں ہے، لیکن جو بات سچ تھی میں نے بیان کر دی۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے حق بولنے کی اور حق بات حق تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر رسول پر ایک سے بڑھ کر کے ایک علماء اور حفاظ قراء تشریف فرما ہے، اور خاص طور سے الغوثیہ جو کمیٹی ہے اور اس کے ذمہ دار حضرت مولانا ریحان خان صاحب قبلہ حنفی، قاری معصوم رضا شفیع صاحب اور ان کی پوری ٹیم لائے کی مبارکباد ہے، جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام رچایا اور بسایا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی یہ کام کرتا ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور آپ کے سناٹے میں آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً آپ لائے کی مبارکباد ہیں۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جو یہ محفل سجائی گئی ہے، رچائی گئی ہے، مولا جن جن لوگوں نے بھی جس طریقے سے دامے درمے قدمے سخنے اس میں حصہ لیا ہے، مولا سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ماشاءاللہ۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بلا تاخیر اللہ کے حبیب دونوں عالم کے طبیب جناب احمد مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
جب کبھی موقع ملے تو ہم سب کو پیارے آقا پر درود پاک پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی ہے، ہر حال میں قبول ہونے والی عبادت کا نام کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ درود پاک۔ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گھر میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے دکان میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے کھیت اور کھلیان میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے جب بندہ پیارے آقا پر درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک کی برکت سے اللہ بندے کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جس بندے کی دعائیں قبول نہ ہو وہ درود پاک پڑھے، پھر دعا کرے، پھر درود پاک پڑھے، درود پاک قبول ہے تو اس کے صدقے میں جو بندہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ ہمیں تو یہی مزاج ملا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ پتہ کیا چلا؟ درود پاک سے ہمارا بگڑا ہوا نصیبہ سنور جاتا ہے، درود پاک کی برکت سے بگڑی ہوئی تقدیر سنور جاتی ہے، اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ ہمارے خاندان میں برکت عطا فرماتا ہے۔ بلکہ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی تو یہاں تک تحریر فرماتے ہیں کہ جو بندہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اس کے خاندان میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے کھیت کھلیان میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ سارے فضائل و مناقب باقاعدہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، صحابہ کے اقوال میں موجود ہے، تابعین کے اقوال میں موجود ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ پابندی کے ساتھ پیارے آقا پر درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، درود پاک کی برکت سے اللہ اس کے آنے والی 3 نسلوں میں عاشق رسول کو پیدا فرماتا ہے، عاشق رسول کو پیدا فرماتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ درود پاک بہت بڑی عبادت ہے، اللہ اس کی برکت سے باقاعدہ خاندان میں عاشق رسول پیدا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھنا ہم کچھ بنے یا نہ بنے لیکن عاشق رسول بننا بہت ضروری ہے، اس لیے یہ کامیابی اسی میں ہے۔ حضرات گرامی آج ہماری زندگی کا کوئی عیب نہیں ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ مجھے سرکار کا میلاد بھی بیان کرنا ہے اور کچھ ضروری باتیں بھی آپ سے کرنی ہے، اس لیے کہ واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں، آپ نے واقعات بہت سارے سنے ہوں گے، میں بھی برکت کے لیے وصول برکت کے لیے ایک دو واقعہ میلاد کا بیان کروں گا، لیکن حضرات گرامی اس کے بعد کچھ ضروری باتیں مجھے آپ سے کرنی ہے۔ توجہ کے ساتھ آپ یہاں پر تھوڑی دیر تشریف رکھیں اور آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر کے رات کے سناٹے میں محفل کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ اس کی برکت سے آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ جس اتحاد و اتفاق کے ساتھ آج باقاعدہ پیر پور چوراہے پر اکٹھا ہو کر کے آپ اپنے ایک چہدی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، جو پیغام حضور حافظ ملت نے دیا تھا، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے، اس یونٹی کے پیغام کو، اتحاد کے پیغام کو آج پیر پور چوراہے پر اعلان کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ آج کے اس پرفرن دور میں زمانہ کہتا ہے تم کس کا تذکرہ کرتے ہو، تم کس کا نام لیتے ہو؟ یہ دور تو ایسا فتنوں کا دور ہے کہ آج تو ہماری محبت پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، آج پیارے آقا کے نام لینے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ آج تو عالم یہ ہے کہ اگر ہم پیارے آقا کے نام کا بینر لگائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں کرنا ہے، زمانہ کچھ بھی کرے، زمانہ چاہے ناچتا رہے، چاہے باقاعدہ وہ شور شرابہ کرتا رہے، لوگ زنا کے اڈے کو آباد کرتے رہے، لوگ شراب کے اڈے کو آباد کرتے رہے، لوگ باقاعدہ خرافات کرتے رہے، لوگ باقاعدہ لوگوں کو جام کرتے عیاشیاں کرتے رہے، لیکن ان کے اوپر کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن کب جب دیوانہ پیارے آقا کا ماننے والا، پیارے آقا کا چاہنے والا میدان عمل میں اتر کر کے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے تو آج زمانے کے نادانے کیسے ظالم ہے، کہتے آئل محمد کا پوسٹر تمہیں نہیں لگانا ہے، آئل محمد کا بینر تمہیں نہیں لگانا ہے۔ یاد رکھنا اگر تم نے یہ بینر لگایا تو تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ اسے ہندوستان کی سرزمین پر جب ہمارے نوجوانوں نے باقاعدہ آئل محمد کا بینر لگایا اور پیارے آقا سے محبت کا اظہار کیا، نہ جانے کتنے لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اور کہا گیا سنو سنو تم ایسا نہ کرو، پیارے آقا سے محبت کا اظہار نہ کرو، پیارے آقا کا نام نہ لو، پیارے آقا کے نام کو باقاعدہ بلند نہ کرو، یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگاؤ۔ آپ تو ہماری محبت پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، لیکن حضرات گرامی شاید کہ ظالم جانتے نہیں ہے الحمدللہ ہم امام محمد رضا خان کے ماننے والے ہیں، ہم نے ڈبے کا دودھ نہیں پیا ہے، ہم نے اپنی ماں کا اوریجنل دودھ پیا ہے۔ ہماری زندگی کے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے صحابہ کی
की जिंदगियां है, अहले बैत घाट की जिंदगियां है। हम सहाबा के भी मानने वाले हैं, हम ताबईन के मानने वाले हैं, जिन्होंने सालिमों के सामने सीना तान करके कहा था, अरे यार तुम चाहते हो कि जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, हमने प्यारे आका के नाम को बुलंद किया कि हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा, हमें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। उस वक्त सहाबा ने कहा था, और हम सहाबा के गुलाम हैं, अहले बैत घाट के गुलाम हैं। आज पीरपुर चौराहे पर शान के साथ ये ऐलान करते हैं, जब बात प्यारे आका के नामूस की आएगी, बात प्यारे आका की शान की आएगी, तो हम भी खामोश नहीं बैठेंगे, हम शान के साथ कहेंगे, सालिमों सुनो, जो जान मांगो तो जान। यार हाथों को उठा कर अगर वाकई मुजाहिद है, दिल में ईमान सलामत है, डरने की जरूरत नहीं है। मौत का एक दिन मुतय्यन है, जब मौत आएगी कसम खुदा की दुनिया का कोई इंसान उसे रोक नहीं सकता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। फैज़ा जाज़िहु ला यस्ताख़िरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आता है उसमें एक सेकंड में तब्दीली नहीं होती। इसलिए आज ईमानी जज्बे को बेदार करते हुए सहाबा की जिंदगी को सामने रखे और शान के साथ कहे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी को चाहो जलाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात गिरामी, बात ये मोहब्बत की है, बात ये इश्क की है। आप बताओ हमारे पास है क्या? कसम खुदा कि अल्लाह ने आसमान बनाया है तो प्यारे आका के सदके में बनाया है, जमीन बनाई है तो प्यारे आका के सदके में बनाई है। यहाँ तक कि बाकायदा ये भी रिवायतों में आता है, लौला लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्ज़ीन, ए महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जमीन को भी ना बनाता, आसमान को भी ना बनाता। पता क्या चला, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये अगर हमारे बदन पर कपड़े हैं ना, कसम खुदा कि ये प्यारे आका का सदका है। अब हमारे घरों में जो खाना बन रहा है ना, ये प्यारे आका का सदका है। आज हम आसानी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं ना, ये प्यारे आका का सदका है क्या हमारे पास? लोग कहते हैं प्यारे आका का मिलाद ना मनाया जाए, अरे यार उससे बड़ा एहसान फरामोश कौन होगा? किसे मनाना चाहिए प्यारे आका का मिलाद? आज तारीख की रोशनी में क्या मालूम नहीं है अरब की सरजमीन पर कैसा गंदा माहौल था। एक बच्ची पैदा होती लेकिन सालिम से जमीन के अंदर बाकायदा जिंदा बरगोर कर लिया करते थे। लेकिन कुर्बान जाओ उस करीम आका पर जिसे मदनी मक्की आका कहा जाता है। मदीने का ताजदार मक्के में तशरीफ लाया, तशरीफ लाने के बाद इरशाद फरमाया, सुनो बेटी जमीन में जिंदा बरगोर करने के लिए नहीं है, बल्कि बेटी तो ताज़ीम की चीज है, बेटी तो रहमत है। सुनो सुनो, अगर किसी की 3 बेटियां हो, उनकी अच्छे से परवरिश करे, उनका निकाह कर दे तो अल्लाह 3 बेटियों के सदके में माँ बाप को जन्नत अता फरमाता। सुभान अल्लाह, जन्नत अता फरमाता। अच्छा, जिनकी बेटियां हैं वो सुभान अल्लाह कहते हैं, सुभान अल्लाह, जिनकी नहीं है वो भी सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। 3 बेटियां। एक साहबी खड़े हुए अर्ज किया, रसूलुल्लाह अगर किसी की 2 बेटियां हो, प्यारे आका का दरियाए करम जोश में है, प्यारे आका जो फरमाते वही शरीयत है, वही कानून है, वही निजाम है। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, परेशान ना हो, अगर किसी की 2 बेटियां हो, उनकी अच्छे से परवरिश करे, उनका निकाह कर दे तो अल्लाह उन 2 बेटियों के सदके में माँ बाप को जन्नत अता फरमाएगा। पता क्या चला, बेटियां रहमत है, जमाना उसे रहमत समझता है, लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह ने बेटियों को रहमत बनाया है, लिहाजा पूरी दुनिया में हर बेटी को प्यारे आका का मिलाद मनाना चाहिए। इसलिए कि बेटियां सलामत है तो ये प्यारे आका का सदका है। हर माँ को प्यारे आका का मिलाद बनाना चाहिए, इसलिए कि पहले अजीब गरीब माहौल था मक्के की सरजमीन पर। जब बाप का इंतकाल हो जाता ना तो बाकायदा उसका जवान बेटा अपनी माँ के गर्दन में रस्सी डाल करके घसीटता हुआ बाजार में ला करके अपनी माँ को बेच देता था। ऐसा भयानक माहौल था अरब की सरजमीन पर। लेकिन कुर्बान जाओ मक्की मदनी आका पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, माँ बेचने की चीज नहीं है, माँ तो इज्जत की चीज है, माँ तो ताज़ीम की चीज है। अल जन्नत तहता कामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है, जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। माँ को इज्जत किसने दिलाई है? इस कायनात में अगर किसी ने माँ के हुकूक की बात की है तो कसम खुदा के पैगंबर आज़म है, वो रसूल आज़म है, वो मक्के का सुल्तान है, वो मदीने का ताजदार है। लिहाजा हर माँ को प्यारे आका का मिलाद बनाना चाहिए। और जिस तरीके से माँ के कदमों के नीचे जन्नत है ना, उसका दरवाजा तुम्हारा बाप है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप राजी है तो अल्लाह उसके रसूल भी राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह उसके रसूल भी नाराज है। पता क्या चला, हर माँ बाप को प्यारे आका का मिलाद बनाना चाहिए। इसलिए कि माँ बाप को इज्जत मिली है तो प्यारे आका के सदके में मिली है। और किसे प्यारे आका का मिलाद बनाना चाहिए? हर यतीम को प्यारे आका का मिलाद बनाना चाहिए। इसलिए कि वो यतीम जिसका बाप ना हो, जिसकी
माँ ना हो, जिसका कोई पुरसाने हाल ना हो। जमाने में उसे लोग धक्का दिया करते थे, लोग बाकायदा काम करा करके भगा दिया करते थे, लेकिन कुर्बान जाओ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्यारे आका तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया अगर कोई किसी यतीम की किफालत करे, किसी यतीम की जिम्मेदारी ले, यतीम के सर पर हाथ रखे, बाकायदा उसके किफालत की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ले, तो सुनो सुनो, यतीम की किफालत की जिम्मेदारी अपने सरों पर लेने वाला कल जन्नत में प्यारे आका ने उंगली का इशारा किया, फरमाया जो यतीम की किफालत करेगा और मैं, ये दोनों लोग जन्नत में इस तरीके से साथ में होंगे। पता क्या चला, यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में इस तरीके से साथ में होगा। आप बताओ यतीम को किसने इज्जत दी है? प्यारे आका ने इज्जत दी है। और आगे चले, दुनिया में जो वर्कर होते हैं, जो काम करने वाले आमिल होते हैं, जिन्हें मजदूर कहा जाता है, लोग पहले काम कराते थे, काम करा करके उन्हें छोड़ दिया करते थे, उन्हें पैसा नहीं देते थे। आप जानते हैं ना, न जाने कितने मजदूर ऐसे हैं जिनका गुजारा दिहाड़ी पर होता है, 400 रुपए अगर शाम में ना मिले तो उनके घरों में चूल्हा नहीं जलता। लेकिन न जाने कितने ऐसे सालिम लोग हैं जो काम करा करके मजदूरों को उनका पैसा नहीं देते हैं, उनकी मजदूरों नहीं देते। यही माहौल था, लेकिन कुर्बान जाओ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पर प्यारे आका तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया उतुल नजीर आजरहु कबला यजुफाजहु, मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दी जाए। ये प्यारे आका का फरमान है। पता क्या चला, मजदूर को ये हक मिला है तो प्यारे आका के सदके में मिला है, यतीम को ये हक मिला है तो प्यारे आका के सदके में मिला है, माँ बाप को ये हक मिला है तो प्यारे आका के सदके में मिला है। लिहाजा सारे लोगों को प्यारे आका का मिलाद बनाना चाहिए। इसीलिए तो हम कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह अकबर, मक्के की सरजमीन है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन है, प्यारे आका की आमद हुई है। हज़रत आमना फरमाती है जब प्यारे आका की आमद हुई ना, लम्मा वज़ातुहु खरजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से एक नूर निकला, मेरे अंदर से एक नूर निकला। अदाल हो कुसूर शाम, जिससे शाम की बिल्डिंगें रोशन हो गई। मैं मक्के में थी, मैंने मक्के में बैठे बैठे शाम के महल्लात को देख लिया, रोशनी बढ़ती चली गई, नूर बढ़ता चला गया, मैंने शाम के बिल्डिंगों को देख लिया। जब इस वाक़े पर नजर पड़ी, मेरे इमाम के खलीफा जमील कादरी की, जमील कादरी पुकार उठे, प्यारे आका की विलादत हुई, नूर फैला। हज़रत आमना ने उस नूर में, उस लाइट में बाकायदा शाम की बिल्डिंगों को देख लिया। हज़रत जमील कादरी बोल पड़े, ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम रोशनी में आमना में, जिनकी देखे मुल्क शाम वाह वाह क्या चांद निकला। अस्सलातु सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। हज़रत गिरामी प्यारे आका की पैदाइश हुई, हज़रत आमना का बयान है, लम्मा रईतुहु काना मकहूलन मगसूलन मदहूनन मगसूलन काना साजिदा, शान थी प्यारे आका तशरीफ लाए, आंखों में सुरमा लगा हुआ था। कहती जो साहब, मैं किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के बाप की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, रसूल पाक की तारीफ कर रहा हूँ, मिलाद बयान कर रहा हूँ। मैं तेजी के साथ प्यारे आका की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों में तेल लगा हुआ है, गुस्ल किए हुए है। शान क्या है, हमारे बच्चे पैदा हों, उनके नाक का कनेक्शन बाकायदा उनकी माँ से होता है। कोई डॉक्टर काटता है, कोई नर्स काट देती है, कोई दाई काटती है, लेकिन कुर्बान जाओ प्यारे आका पैदा हुए ना, नाक फूलता है, नाक पहले से कटी हुई है, सर को सजदे में रख दिया है। और जानते क्या, प्यारे आका रोए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए। जमाने का निजाम बदल गया, दुनिया में लड़का पैदा हो तो उसका रोना जरूरी है, अगर रोए ना तो बाप भी परेशान, माँ भी परेशान, दादा भी परेशान, बाप भी परेशान, डॉक्टर भी परेशान। लड़का पैदा हुआ, रोया नहीं, कहीं कोई बीमारी से लाहिक ना हो जाए, इसकी सेहत ना खराब हो जाए। अगर मामला क्या है, आज आमना का लाल मक्के की सरजमीन पर आया है, आखिर ये रोया नहीं, मुस्कुराते हुए आया है। आखिर ये जमाने का निजाम बदला क्यों, ये जमाने का कानून बदला क्यों? लोग हैरान परेशान थे, आवाज आई, ये कोई आम बच्चा नहीं, ये अब्दुल्ला का लफ्ते जिगर है, ये आमना का लाल है,
ये रोने के लिए नहीं, ये रोने वालों को हंसाने वाला बनकर के दुनिया में तशरीफ लाया है। ये रोने वालों को हंसाने वाला बनकर के दुनिया में तशरीफ लाया है। सर को सजदे में रख दिया। लबहाए मुबारक में जुम्बिश थी। आमना कहती मैंने कान को लगाया ना, आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लामा जमील कादरी बोल पड़े, प्यारे आका के बिलाल मक्के में हुई। आमना कहती है मैंने कान लगाया, आवाज आई रब्बे हबली उम्मती, पुकार उठे रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। हज़रत गिरामी प्यारे आका की पैदाइश हुई। खाने काबा की दीवार आमना के घर की तरफ झुकी। खाने काबा के अंदर से आवाज आई। तारीख के औरात में लिखा हुआ है वलिदल मुस्तफल मुख्तार अल्लज़ी तुग़लक़ु बिहिल कुफ़ार व युताहिरू मिन इबादतिल सलाम व यामुरू बिइबादतिल मलिकिल अज़ीज़िल अल्लाह। आज मुस्तफा मुख्तार की दुनिया में आमद हो चुकी है, जिनके हाथों कुफ़ार को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। खाने काबा के बुतों से पाक को साफ करने वाले हैं, एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देने वाले हैं। पता चला मक्के में प्यारे आका की आमद हुई। हर तरफ खुशी का माहौल है, हर तरफ बाकायदा सरसब्ज़ शादाबी है। अल्लाह ने आसमान को बाकायदा सितारों के जरिए सजाया है, जमीन को सरसब्ज़ शादाब किया है। हम चाइना लाइट लगा ले, लोग इतराज करें, नहीं नहीं, अल्लाह ने तो आसमान को बाकायदा चांद सितारों के जरिए सजाया है, जमीन को सरसब्ज़ शादाब किया है। खूंचे चटके, फूल महके, चहचहाई बुलबुलें, गुल खिला बाग़े अहद का अस्सलातु वस्सलाम, गुल खिला बाग़े अहद का अस्सलातु वस्सलाम। लेकिन हज़रात गिरामी ये 12 रबीउल शरीफ है क्या? ये प्यारे आका की विलादत पर खुशी मनाने का भी दिन है, प्यारे आका की आमद पर खुशी मनाने का दिन है, मिलाद की खुशी मनाने का दिन है, झंडे लगाने का दिन है। लेकिन हज़रात गिरामी साथ ही साथ ये तजदीद अहद का भी दिन है, तजदीद वफा का भी दिन है। आखिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं, हम कहते हैं कि हम प्यारे आका के गुलाम हैं, लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता। आज हमारा आलम यह है कि आज माँ बाप की निगाहों के सामने उनका बेटा बाकायदा अय्याशी करता हुआ नजर आता है, खुराफात करता हुआ नजर आता है। आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बाकायदा जुलूस के नाम पर, बाकायदा खुशी के नाम पर नौजवान कहीं पर बाइक से राइडिंग करता हुआ नजर आता है। आज हमारे नौजवान कहीं शराब के अड्डे पर है, कहीं सिना के अड्डे पर है। आज हमारा नौजवान पूरी पूरी रात मोबाइल पर अय्याशियां करता हुआ नजर आता है, मोबाइल लेकर के उसमें खुराफात करता हुआ नजर आता है, न जाने कैसी कैसी गंदी तस्वीरें देखता हुआ नजर आता है। हज़रात गिरामी शर्म आनी चाहिए। आज लोग कहते हैं कि हमारे 4 बच्चे हैं, लेकिन हज़रात गिरामी जरा बताओ तो सही, तुम्हारे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे मुंबई में रहते हैं, 2 बच्चे सऊदी में रहते हैं, एक बेटा 50,000, दूसरा बेटा 50,000, 2 बच्चे 1-1 लाख भेजते हैं, 3 लाख की इनकम है। तुम चौराहे पर बैठ करके शान के साथ कहते हो, अपने कॉलर को टाइट कर करके, अजी सुबह मेरे 4 बच्चे हैं ना, 3 लाख रुपए की इनकम है महीने में, चाय पीते हो शान से और कॉलर को टाइट करके लोगों के सामने शान लगाते हुए कहते हो मेरे 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे 3 लाख की इनकम है। बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारी दुआ है कि तुम्हारे बच्चे 3 लाख रुपए कमाते हैं। लेकिन हज़रात गिरामी सर तो ऊंचा हो जाता, कॉलर तो टाइट होता शान के साथ, जब उसी चाय की दुकान पर तुम बैठते और बैठने के बाद कहते हमारे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हाफिज़ कुरान है, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे आलिम दीन है, हमारे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे में से डॉक्टर इंजीनियर भी हैं, लेकिन साथ ही साथ प्यारे आका के फरमाबरदार भी हैं, चेहरे पर सुन्नत को सजाने वाले भी हैं, ज़रूरियात दीन को जानने वाले भी हैं। आज हमारा आलम यह है कि हम दीन से दूर हैं। हमारा बच्चा अगर डॉक्टर है, अगर लॉयर है, तो वो दीन से दूर है, और जो दीन से करीब भी है, जो बाकायदा दुनिया के बारे में कुछ जानता नहीं है। इसलिए हज़रात गिरामी आप अपने बच्चों को दीन से भी करीब करें और आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और लॉयर सब बनाइए। लेकिन हज़रात गिरामी पहले अपने बच्चों को उलमा के पास भेजो, इन इम्मा के पास भेजो, इन मदरसे में भेजो। पहले अपने बच्चों को भेज करके बेहतरीन कुरान पाक का नाज़रा पढ़ने वाला, कम से कम कुरान पाक का आमिल बनाओ, कुरान पाक का बेहतरीन कारी बनाओ। उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर सब बनाओ, ज़रूरियात दीन सिखाओ। उसके बाद डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। इस्लाम मना नहीं करता कि तुम अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, लॉयर ना बनाओ, प्रोफेसर ना बनाओ। आज हमें जरूरत है अच्छे डॉक्टर की, जरूरत है अच्छे इंजीनियर की, जरूरत है अच्छे लॉयर की, जरूरत है अच्छे प्रोफेसर की। लेकिन हज़रात गिरामी पहले ज़रूरियात दीन सिखाओ, अक़ाइदे सुन्नत वल जमात सिखाओ,
देखा कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे लेकिन उसे एहसास हो कि मैं मुसलमान हूँ, वो इंजीनियर की कुर्सी पर बैठे लेकिन उसे एहसास हो कि मैं मुसलमान हूँ, वो लॉयर की कुर्सी पर बैठे लेकिन वकील तो हो लेकिन पैसे लेकर के जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम ना बनाए, बल्कि पैसा ना ले, घूस ना ले, रिश्वत ना ले, बल्कि कुरान और हदीस के मुताबिक वो बाकायदा लोगों का ऐसा फैसला करे कि बाकायदा जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो लॉयर है, वो अपने कुर्सी का इत्मीनान करते हुए बाकायदा शरीयत के मुताबिक लोगों का इलाज करता हुआ नजर आए, इस्लाम के कवानीन की पाबंदी करता हुआ नजर आए, इस्लाम के कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारता हुआ नजर आए। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि जो जिम्मेदारी हमारी थी, एक बाप की जो जिम्मेदारी थी ना, वो हमने निभाया नहीं, हमने छोड़ दिया जिंदगी को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए, तुम्हारी बेटी 7 साल की हो जाए, उन्हें नमाज की तलकीन करो। तुम अपने बच्चों को सिखाओ तो सबसे पहले अदब सिखाओ, अच्छा अखलाक सिखाओ। तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाए तो उन्हें मार करके नमाज पढ़ाओ। तुम्हारे बच्चे बाकायदा बालिग और बालिगा हो जाए तो नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। लेकिन आप बाप को इसकी कोई फिक्र नहीं है, बल्कि आलम क्या है, बस ऐसा हो चाहे जैसा हो। आप तो हमारा आलम यही है, हर चौराहे पर बैठ करके कोई सट्टेबाजी करता है, आप तो मोबाइल पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है, 10 को 20 कैसे बनाना है, 50 को 100 कैसे बनाना है, आज हमें एहसास नहीं होता। और जो मेहनत से कमाता है ना 500 रुपए 1000, लोग कहते ये बेवकूफ आदमी है यार, रातों रात करोड़पति बनना चाहिए, 1 को 2 बनाना सीखना चाहिए। याद रखना, ऐसी दौलत पर अल्लाह की लानत है जो हराम तरीके से कमाई जाए, ऐसी दौलत पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, दुनिया में तमाम इंसानों की लानत है जो किसी का खून चूस करके कमाई जाए, जो रिश्वत लेकर के कमाई जाए, कि बाकायदा सूद प्याज का कारोबार करके की जाए। सुनो सुनो, हदीस पाक में आपको सुनाता हूँ। काला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कान खोल करके सुनना, इसलिए कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। तुम मुझे दोबारा पिलाओ कि ना पिलाओ, लेकिन जो हक बात है वो मैं कहने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ हक बातें आपके दिलों तक पहुँचाऊँ। सिर्फ हदीस पाक सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, ईसा वकात उम्मतुम मिनल हराम फी बतनी इब्न आदम लानहुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमईन। एक लुक़मा हराम का बंदे के पेट में चला जाता है, उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्तों की लानत है, उस पर दुनिया में तमाम इंसानों की लानत होती है। पता क्या चला? एक लुक़मा हराम का चला गया बॉडी के अंदर। अब तवज्जो के साथ आप सुनना, एक लुक़मा हराम का बॉडी के अंदर चला गया, चाहे कोई भी हो, जब वो हराम खाएगा रिश्वत के नाम पर, घूस के नाम पर, एक ना एक दिन उसका बदला दुनिया में ही देना पड़ेगा। इसलिए अदल इंसाफ हश्र पर मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। इसलिए हज़रात गिरामी याद रखना। अब तवज्जो के साथ सुने, हो सकता है हराम हमने खाया है ना, हो सकता है एक दिन के बाद हमारा इंतकाल हो जाए, इसलिए कि मौत का तो कोई भरोसा नहीं है, मौत तो कभी भी आ सकती है। आ सकती है ना भाई? जी जी बेशक। अच्छा आप सुन रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो भाई, सुन रहे हैं कि नहीं? जी, मुझे लतीफा नहीं आता, बहुत खूब। मुझे चुटकुले नहीं आते, मुझे कहानियां याद नहीं, तो विलादत के वाकयात बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है, बस काम की बात है। हज़रात गिरामी आप बताओ, हराम का एक लुक़मा पेट के अंदर चला गया, हो सकता है एक दिन के बाद, आफ्टर 1 डे, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ, बिफोर 40 डेज, 40 दिन से पहले, 1 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 दिन के बाद हमारा इंतकाल हो जाए, हो सकता है जी। मैं बैठा हूं बयान कर रहा हूं, बयान करते करते इंतकाल हो सकता है। कभी लोग कहते हैं यार दोपहर में मुलाकात हुई थी, शाम में अचानक इंतकाल हो गया। क्या ठिकाना है जिंदगानी का, इंसान तो बुलबुला है पानी का। बेशक मौत कभी भी आ सकती है, एक दिन के बाद। अब अल्लाह ना करे, एक लुक़मा हराम का, एक लुक़मे की बात मैं कर रहा हूँ, रिवायत में जो आया है, जो पूरे का पूरा टिकार जाते हैं हराम का, जी, रिश्वत के नाम पर, घूस के नाम पर, सूद प्याज के नाम पर। लोग कहते हैं यार ये इंटरेस्ट का मामला है, पैसा कमाने के लिए दिमाग चाहिए। याद रखना, रिस्क का दारोमदार, पैसा कमाने का दारोमदार अगर इंसान के माइंड पर होता तो दुनिया में किसी पागल को और किसी जानवर को रिस्क ही नहीं मिलता। रिस्क का दारोमदार इंसान के माइंड पर नहीं है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिस्कुहा, जमीन पर कोई जानदार नहीं है मगर उसके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे ले रखी है। आप बताओ ना, कोविड-19 में दुकानें तो बंद हो गई थी, कारखाने तो बंद हो गए थे, फैक्ट्रियां तो बंद हो गई थी, रास्ते तो बंद हो गए थे, लेकिन क्या पूरे पीरपुर चौराहे पर आने वाले मेरे सुन्नी भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों का एक बंदा खड़े होकर के मुझसे कह सकता है हजरत कोविड-19 कोरोना काल में एक दिन मेरा ऐसा गुजरा है कि 24 घंटे मैंने एक दाना भी नहीं खाया? है कोई?
अरे बोलो भाई, है कोई? एक दाना भी नहीं खाए। कौन है? खिलाने वाली जात अल्लाह की है, खिलाने वाली जात अल्लाह की है। इसलिए हज़रात ग्रामी तवज्जो के साथ आप जुमला सुनिएगा। अब अल्लाह ना करे हमने हराम खा लिया, एक मुकमे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हराम ही हराम खाते हैं, आप सोचो उनका आलम क्या होगा। इसलिए हज़रात ग्रामी आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए भी, साथ ही साथ उसके हलाल खाइए। आप हो सके तो कम खा लीजिए, लेकिन हलाल इसके खाइए, इसलिए कि जब हलाल आप खाएंगे ना, वही पेट के अंदर जाएगा, वही नुक्ता बनेगा, वही बीवी के पेट में जाएगा, वही हमल करा पाएगा। उसी से अगर बेटा पैदा होगा, बेटे के रगों में जो खून दौड़ेगा ना, वो हलाल का खून होगा। आपको किसी बाबा के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप किसी से शिकायत नहीं करेंगे कि मेरा बेटा मेरा फरमाबरदार नहीं है, मेरा बेटा मेरी बातों को नहीं मानता। इसलिए कि अगर आप हलाल खिलाएंगे तो आपका बेटा आपका वफादार होगा। लेकिन अगर आपने हराम खिलाया है, कैसा हो चाहे जैसा हो, अगर हराम रिश्ता आपके पेट में गया है, वही बेटे के रगों में तोड़ेगा। तो याद रखना कि आप बेटे से वफादारी की उम्मीद मत रखेंगे, आप अपने बेटों से वफा की उम्मीद मत रखिएगा। अब अल्लाह ना करे एक लुकमा हराम का हमने खा लिया, एक दिन के बाद, एक महीने के बाद, 40 दिन से पहले पहले अगर हमारा इंतकाल हो गया, सुनो कभी जाकर के पूछना मेडिकल साइंस वालों से, डॉक्टरों से, डॉक्टर तुम्हें बताएंगे एक दाना बॉडी के अंदर जाता है ना, इन होल बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर नियर अबाउट 40 डेज, तकरीबन 40 दिन तक उस दाने का असर रहता है। इसलिए रिवायतों में आता है, अहादीस में आता है, जब बंदा हराम खाता है ना तो 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, 40 दिन तक उसकी इबादतें कबूल नहीं होती, 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। आज हमारा आलम ये है, हम पस्ती का शिकार है, आज हम मारे जा रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हम दुआ करते हैं दुआ कबूल नहीं होती। इसलिए कि कहीं ना कहीं हराम की आमेजिश होती है, कहीं ना कहीं बाईपास हराम हम भी खा लेते हैं, इसलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। रिवायतों की बुनियाद पर और मेडिकल साइंस के एतबार से 40 दिन तक बॉडी के अंदर असर रहता है। अब रिवायत सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक लुकमा हराम का बंदे के पेट में चला गया, उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत, उस पर दुनिया में तमाम इंसानों की लानत। माता अला तिलकल हाला फमावाहु जहन्नम, अगर उसी हालत पर बंदे का इंतकाल हो जाए ना तो उसका ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज आलम साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान। मर के नहीं जाना, मरना बरहक है, दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी खबर है, तय कर रहा है तुझे 2 दिन का ये सफर है। मैदान तब जिंदगी की शाम हो जाए, होश के नाखून ले, बहुत हमने ख्वाब गफलत में जिंदगी गुजार ली, हमने अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं दी। हमारा नौजवान बेटा हमारी निगाहों के सामने मोबाइल पर फहशुरिया तस्वीरें देखता रहा, शराब पीने को आबाद करता रहा, नमाज के वक्त चाय के होटल पर बैठा रहा, बाप के सर पर चो नहीं रहेगी। आज हमारी माँ की निगाहों के सामने जवान बेटियां मोबाइल पर दूसरों के साथ रंगरेलियां मनाती रही, मोबाइल पर न जाने कैसी कैसी फहशुरिया तस्वीरें देखती रही, उसके बाद दूसरों के साथ चली गई। उसके बाद कभी अफसोस मरने का फायदा क्या है? मैं कहना चाहता हूँ हर उस माँ से, हर उस बाप से, बाप हो तो बाप होने की जिम्मेदारी को पूरा करो, माँ हो तो माँ होने का एहसास करो। ये मैं नहीं कहता, क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स मसऊल है, और जो शख्स जिस चीज का जिम्मेदार है ना, कल मैदान हश्र में उससे सवाल किया जाएगा। बाप से पूछा जाएगा बेटों के बारे में, माँ से पूछा जाएगा उसकी बेटियों के बारे में, तेरी बेटियां तेरी निगाहों के सामने बेपर्दा होकर के टहल रही थी, तेरी बेटी तेरी निगाहों के सामने मोबाइल पर न जाने किससे बातें कर रही थी, मोबाइल पर याशिया कर रही थी, तेरे सर पर चोर ही रहेगी। ऐसे बाप के ऊपर अल्लाह की लानत है, ऐसे माँ के ऊपर अल्लाह की लानत है, जिसके जवान बेटे उसकी निगाहों के सामने याशिया करे, जिसकी जवान बेटे उसकी निगाहों के सामने याशिया करे। होश देना हो लो, अपने बच्चों को दीन से करीब करो। मैं एक नुस्खा बता करके जाना चाहता हूँ, यार बीर पर चौराहा बनाने वालों, आज बड़ा बड़ा घर बनाते हो ना, एक नुस्खा बताता हूँ बड़ी तवज्जो के साथ। हो सकता है कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, मैं अपने दिल की बात तुमसे कहने के लिए आया हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं अपने दिल की बात को आप तक पहुँचाने के लिए आया हूँ। आप बड़े बड़े घर बनाते हो ना, बंगले बनाते हो, बड़े बड़े हवेली तैयार करते हो, लेकिन जब हम लोग कभी जाते हैं ना, नमाज पढ़ने का टाइम आता है, हम कहते हैं मुसल्ला बिछा दो, लोग कहते हैं हजरत यहाँ मुसल्ला बिछा लीजिए, हम कहते हैं मुसल्ला यहाँ
بچھا لے, کہتے ہیں حضرت یہاں مصلی بچھا لیں گے, ہو سکتا ہے بیٹے نے یہاں پیشاب کیا ہو. ارے یار تمہارا بیڈ روم 15x15 کا ہے, تمہارا باتھ روم 10x10 کا ہے, ویسٹرن بھی انڈین بھی باقاعدہ شاور لگا ہے, ٹب لگا ہے, ساری چیزیں ہیں. یار تمہارا گیسٹ روم 20x20 کا ہے, لیکن تمہارے گھر میں کوئی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. افسوس کی بات ہے, شرم آنی چاہیے. ارے یار اتنا بڑا گھر بناتے ہو نا, اللہ تمہیں توفیق دے تو ایک کمرہ بنایا کرو, اس کا نام رکھو نماز ہال, مسجد پیک. اس کمرے میں چند مصلے رکھو, ایک الماری رکھو, ترجمے کے نام پر اعلیٰ حضرت کا کنز ایمان رکھو, سیرت رسول اکرم رکھو, صحابہ کی تعلیمات رکھو, سیرت صحابہ رکھو, سیرت اسواد مطہرات رکھو, سیرت تابعیات رکھو, سیرت اہل بیت اطہار رکھو. تم کہتے ہو بیٹی خیر کے ساتھ چلی گئی, ناک کٹوا دی, تم اس باقاعدہ کمرے کے اندر سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کی سیرت پر کتاب رکھو, سیدہ زینب کی سیرت پر کتاب رکھو, امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی سیرت پر کتاب رکھو, امی خدیجہ الکبریٰ کی سیرت پر کتاب رکھو. قسم خدا کی اپنی بیٹی کو تم سکھاؤ, تم نماز مسجد میں پڑھو, تم اپنے گھر چلے جاؤ. تم کہتے ہو بچوں کو سمجھاتے ہیں اثر نہیں ہوتا, یار کہنے سے زیادہ کیریکٹر کا اثر پڑتا ہے, عمل کا اثر پڑتا ہے. تم باقاعدہ فرض نماز مسجد میں ادا کرو, اس کے بعد اپنے گھر میں آؤ. چیلنج کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں, تم چاہو تو آسمان لینا, میں باقاعدہ آپ کے سامنے چیلنج کر کے جانا چاہتا ہوں. تمہارا بیٹا 5 سال کا ہو, تمہاری بیٹی 5 سال کی ہو, آزما لینا, ورنہ میرا نمبر لینا, مجھے کال کرنا کہ مولانا آپ نے جھوٹ کہا تھا. یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. آپ کا بیٹا اونلی 5 ایئرس, صرف 5 سال کا ہے, آپ کی بیٹی 5 سال کی ہے. تم باقاعدہ فرض نماز مسجد میں ادا کرو. آؤ اپنے گھر میں, اسی نماز ہال میں, اسی مسجد بیت میں, اسی کمرے میں جاؤ, مصلی بچھاؤ. تمہارا بیٹا 5 سال کا ہوگا, تمہاری بیٹی 5 سال کی ہوگی. تم ایک دن مصلی بچھاؤ گے نا, نماز کے لیے کھڑے ہوگے نا, قسم خدا کی 1 دن گزرے گا, 2 دن گزرے گا, 3 دن گزرے گا, 5 دن سے زیادہ نہیں گزرے گا. تم کھڑے ہوگے, تمہارا وہی 4 سال 5 سال کا بیٹا تمہارے بغل میں آ کر کے کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا. تم رکوع میں جاؤ گے, رکوع معلوم نہیں اسے, سبحان ربی العظیم کا مطلب نہیں جانتا وہ, لیکن قسم خدا کی تم رکوع میں جاؤ گے, تمہارا بیٹا الٹا سیدھا رکوع میں چھپتا ہوا نظر آئے گا. تم سجدے میں جاؤ گے, بیٹے کو پتا نہیں ہے سبحان ربی الاعلیٰ ہے کیا, سجدہ کیا ہوتا ہے, نماز کیا ہے, لیکن قسم خدا کی 5 دن نہیں گزریں گے, تمہارا بیٹا الٹا سیدھا سجدے میں گرتا ہوا نظر آئے گا. اس طریقے سے کیریکٹر کا اثر پڑتا ہے, کردار کا اثر پڑتا ہے. تمہاری بیٹی سجدے میں گرتی ہوئی نظر آئے گی. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, میں جب سنت نوافل گھر میں پڑھتا ہوں نا, باقاعدہ میرا بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے, میری بیٹی بغل میں کھڑی ہو جاتی ہے. کہنا نہیں پڑتا, اس لیے کہ کہنے سے زیادہ عمل کا اثر پڑتا ہے, کیریکٹر کا اثر پڑتا ہے, کردار کا اثر پڑتا ہے. اس لیے حضرات گرامی, آپ اپنے گھر میں نماز ہال بناؤ, اسلامی ماحول بناؤ, اس کے اندر سیرت طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رکھو, سیرت امی عائشہ رکھو. قسم خدا کی تمہاری بیٹی جب قرآن پڑھے گی نا, سیدہ طیبہ طاہرہ کی تاریخ پڑھے گی نا, امی عائشہ کی تاریخ پڑھے گی نا, اسواد مطہرات کی تاریخ پڑھے گی نا, طوفان اٹھے گا, آندھیاں آئیں گی, لوگ دولت کی لالچ دیں گے, لوگ فتنہ برپا پیدا کریں گے, لوگ باقاعدہ ڈالر کی پیسے کی لالچ دیں گے, لیکن قسم خدا کی جس کے سینے میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کی سیرت موجود ہے, ایسی بیٹی مار جانا جو گوارا کرے گی, لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, آمد مصطفیٰ کانفرنس, الغوثیہ کمیٹی. سبحان اللہ. اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ, اپنے بچوں کو اچھا سنسکار دو, اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ, تاکہ بڑے ہو کر کے سینہ تان کر کے تمہارے سامنے کھڑے نہ ہو, بلکہ ادب کی وجہ سے تمہارے بیٹوں کی سر چھٹ جائے, ان کی نگاہیں چھٹ جائے. باپ کا مقام کیا ہے اسلام میں, ماں کا مقام کیا ہے اسلام میں, اتنی اونچی شان ہے. اللہ راضی ہوتا ہے ماں باپ کے راضی ہونے سے, اللہ ناراض ہوتا ہے ماں باپ کے ناراض ہونے سے. جب اتنا اونچا مقام ہے, تم اپنے بچوں کو اچھی تربیت دو, اسلامی ماحول سکھاؤ. اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے, یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اگر دنیا میں کوئی ایک مسلمان غلطی کرے, کون سا دنیا کا ایسا مذہب ہے جس مذہب کے ماننے والے غلطی نہیں کرتے, مجرم نہیں کرتے؟ اگر کوئی ایک مسلمان غلطی کرتا ہے تو اس کا مطلب اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر کوئی ایک ہندو مذہب کا ماننے والا غلطی کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مذہب کے سارے ماننے والے غلطی پر ہیں. نہیں نہیں, ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور ہمارا تو مذہب حق مذہب ہے, ان دین عند اللہ الاسلام ہے. یہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے.
इस्लाम का आलम तो ये है, अगर रास्ते में आप चल रहे हो ना, ये इतना प्यारा मजहब कसम खुदा की इस्लाम है, ऐसा सच्चा मजहब दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप तारीख तो हो, आप पूरी दुनिया में कोई दिन ऐसा कैद नहीं होता कि तारीख में जाहिल नहीं, अनपढ़ नहीं, बल्कि पढ़ा लिखा तबका, पढ़ा लिखा इंसान, हाई एजुकेटेड इंसान इस वक्त पूरी दुनिया में आप न्यूज पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए कोई दिन ऐसा गुजरता नहीं है ये बंदा कुरान पढ़ करके इस्लाम का मुताला करने के बाद इस्लाम को कबूल करता हुआ। क्या कहने, माशाअल्लाह, ये इस्लाम की शान है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, बस हम अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करें, हम कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारे। इस्लाम का नजरिया क्या है? आप रास्ते में चल रहे हो ना, रास्ते में अगर कोई पत्थर पड़ा है, कोई कांटा पड़ा है, अगर आप उसे उठा करके किनारे डाल दोगे ना, अल्लाह तुम्हारे नामे अमाल में नेकियां लिख देगा। ऐसा इस्लाम है, ऐसा सच्चा मजहब इस्लाम है, ऐसा प्यारा मजहब इस्लाम है। यहाँ पर तो जानवरों के खून बहाने की भी इजाजत नहीं है ना है, यहाँ तक कि याद रखना जानवरों को दुश्मन करने की इजाजत नहीं है इस्लाम में। इंसान तो बड़ी चीज है, इंसान तो शफिल मखलूकात है, इसलिए ज़ात ग्रामी जिंदगी ऐसी गुजारो कि जमाना देख कर कहे देखो मुसलमान है। जिस रास्ते से तुम गुजरो जमाना देख कर कहे देखो मुसलमान जा रहा है। तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा हो, तुम्हारा किरदार ऐसा हो, तुम्हारा अमल ऐसा हो, ज़ात ग्रामी शायद तुम्हें अपनी तारीख पता नहीं है। आइए तारीख के हवाले से इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मैं आपको तारीख के औराक में एक हकीकत से रोशनास कराऊं। आखिर क्या थे हम, क्या थी हमारी पहचान, हम थे कौन लोग, हमने भुला दिया अपनी तारीख को। इसी हिंदुस्तान की तारीख में पहले सबसे पहले इस्लाम जानते कहां पर आया? साउथ में आया है, केरला की सरजमीन पर आया है। आप सुन रहे हैं ना? जी जी सुन रहे हैं आप लोग? हाथ उठा के बताइए, सुन रहे हैं ना? सुने, साउथ केरला में मालीबार का एक इलाका है। एक रिवायत के मुताबिक सहाबा कराम आए, एक रिवायत के मुताबिक बाकायदा ताबईन आए, मुजाहिदीन इस्लाम आए। आने के बाद जानते क्या हुआ? इस्लाम की बुनियाद हिंदुस्तान में पड़ी कैसे? हमारी पहचान क्या थी, हमारा अमल क्या था, हमारा कैरेक्टर क्या था, हमारा किरदार क्या था। माताकुम रसूल फखुशू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिस चीज से मना कर दे उससे रुक जाओ। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सरकार की जिंदगी तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूने अमल है। और हिंदुस्तान की तारीख में, इस भारतवर्ष में इस्लाम किस तरीके से बाकायदा आता है और किस बुनियाद पर इस्लाम आता है, जरा कान खोल करके सुनना। आज हमारा किरदार क्या है, आज हमारा कैरेक्टर क्या है, और हमारा कैरेक्टर था क्या? सहाबा या ताबईन मुजाहिदीन इस्लाम हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। जैसा कि बाकायदा साउथ में सहाबी का भी आस्थाना मौजूद है और बाकायदा ताबई का आस्थाना मालिक बिन दीनार भी मौजूद है, हज़रत तमीम अंसारी भी मौजूद है बाकायदा साउथ की सरजमीन पर। लिहाजा सहाबा आए या ताबईन आए, मुजाहिदीन इस्लाम आए। आने के बाद किस गर्ज से आए थे? इस्लाम फैलाने की गर्ज से नहीं आए थे, बल्कि तिजारत की गर्ज से आए थे, बिजनेस करने के लिए आए थे। बाकायदा यहाँ पर हिंदुस्तान के बाजार में आए। आने के बाद बाजार में बाकायदा अपने कपड़े को रख दिया, बड़े बड़े गट्ठर को सामने रख दिया। तवज्जो के साथ सुनना, हमारी पहचान क्या थी? हज़रात ग्रामी हमने अपनी पहचान को भुला दिया है। तवज्जो के साथ आप जुमला सुन लीजिए। बाकायदा बड़े बड़े गट्ठर को सामने रख दिया जाता है। एक यहाँ का इंसान आया, गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था। आने के बाद उसने कहा ये गट्ठर कितने का है? आने वाले मुजाहिद इस्लाम ने कहा था ये गट्ठर 1 दिरहम का है। उसने कहा ये गट्ठर कितने का है? कहा ये आधे दिरहम का है। कहा अच्छा, क्या दोनों की क्वालिटी चेंज है? कहा नहीं, क्वालिटी सेम है। क्या क्वांटिटी अलग अलग है, यानी ये 50 मीटर है, ये 100 मीटर है? कहा नहीं, क्वांटिटी सेम क्वालिटी सेम। कहा बात बड़ी समझ में नहीं आती। कोई एक बोरी चावल किराने की दुकान पर खरीदने के लिए जाए तो ये बोरी कितने की? कहा 500 की। कहा ये बोरी कितने की? कहा 1000 की। कहा अच्छा, इसमें फर्क क्या है? कहा ये देखो नॉर्मल सेंधा चावल है, ये बासमती चावल है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये 25 किलो की बोरी है, ये 50 किलो की बोरी है। लेकिन कुर्बान जाओ, गैर मुस्लिम ने सवाल किया आने वाले मुसलमान से, मुजाहिद इस्लाम से, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर साउथ के इलाके में ये गट्ठर कितने का है? कहा 1 दिरहम का। ये गट्ठर कितने का है? आधे दिरहम का है। आखिर फर्क क्या है? क्या क्वांटिटी चेंज है, क्वालिटी चेंज है? कहा नहीं, क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी सेम है, मीटर भी बराबर है, मिकदार भी वही है, जिन्स भी वही है, वजन भी बराबर है। फिर आखिर ये तब्दीली क्यों है? और दूसरी जानते हैं चीज क्या थी? जब नमाज का वक्त होता ना, वो सहाबी ये नहीं देखते थे, वो मुजाहिद इस्लाम ये नहीं देखते थे कि वाकया क्या है, हमारा बाजार में माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा। अपने माल को छोड़ करके नमाज के लिए खड़े हो जाते थे, अल्लाह के सामने सबको झुका देते थे। ये दूसरी चीज थी। और पहली चीज क्या थी? कहा सुनो, 1 दिरहम का एक गट्ठर, दूसरा गट्ठर आधे दिरहम का। कहा वजह क्या है? क्या मामला ये है, एक गट्ठर जो 1 दिरहम का है ना, उसके अंदर कहीं पर कोई ऐब नहीं है, कोई कमी नहीं है। और जो गट्ठर आधे दिरहम का है ना, उसके अंदर कहीं पर कुछ ऐब आ गया है, कमी आ गई है। देखा तो ताज्जुब किया, कहा ये कुफर की सरजमीन पर इतनी ईमानदारी, यार गट्ठर थोड़ी हम खोलते, हम तो गट्ठर
सात समंदर पार चले जाते, हम आधे दिन के लिए वहां अरब में थोड़ी आते या तुम्हें दोबारा थोड़ी परेशान करते। आखिर इतनी ईमानदारी, इतनी सच्चाई, इतनी ईमानदारी तुमने सीखी कहां से? अरे यार तुम्हें एक एक दिरहम का दोनों गट्ठर बेच कर चले जाते, जब हम गट्ठर को खोलते तब देखते कहीं पर कोई ऐब है, कमी है, एतराज बाद में होता। इतनी सच्चाई तुमने सीखी कहां से? इतनी ईमानदारी तुमने सीखी कहां से? आने वाले मुजाहिदीन इस्लाम ने कहा था, आने वाले सहाबा किराम ने कहा था, आने वाले बाकायदा मुजाहिदीन ने कहा था, सुनो सुनो, मक्के की सरजमीन पर अल्लाह का पैगंबर तशरीफ लाया है, अल्लाह का पैगंबर तशरीफ लाया है, उसने पैगाम दिया है इबादत सिर्फ एक ही होनी चाहिए, पूजा सिर्फ एक ही होनी चाहिए, परस्तिश सिर्फ एक ही होनी चाहिए, इबादत सिर्फ एक ही होनी चाहिए। और साथ ही साथ उसने ये सिखाया है ईमानदारी से काम लेना, इसलिए कि मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमें धोखाधड़ी करता है उसका शुमार हम में से नहीं हुआ करता, उसका शुमार मुसलमानों में से नहीं हुआ करता। जब ये सुना ना पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कहा और क्या बताया है आने वाले ने? कहा मक्के में जो आया है ना उस पैगंबर ने बताया है बड़ों का आदत करना चाहिए, छोटों पर शफकत करना चाहिए, माँ बाप का आदत करना चाहिए, हर बड़े का आदत करना चाहिए, जानवरों के हुकूक का ख्याल करना चाहिए, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल करना चाहिए। ये बातें आने वाले मुजाहिदीन इस्लाम बयान कर रहे थे। अल्लाह उनके दिलों में मुसाहब पैदा कर रहा था। बात पूरी हुई, हिंदुस्तान के गैर मुस्लिमों ने कहा अरे यार इतना अच्छा जब तुम्हारा दीन है, अध्ययन ना करो, अपने हाथ को आगे बढ़ाओ, हमें भी कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लो। बात पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदुस्तान की सरजमीन पर साउथ के इलाके में हमारी ईमानदारी को देख करके सबसे पहले लोगों ने कलमा पढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मजहबे इस्लाम, सुभान अल्लाह। ये है हमारी तारीख, ये है हमारी पहचान। और हमारा अलग क्या है? हम कहते हैं पैसा हो चाहे पैसा हो, फल का कारोबार करने वाला या कोई सामान बेचने वाला अच्छा माल नीचे नहीं ऊपर रख दिया, खराब माल नीचे रख दिया, माल को सप्लाई कर दिया, चाय की दुकान पर बैठ करके ठीक मारता है, शर्म आनी चाहिए। कहते हो यार पैसा कमाने के लिए दिमाग चाहिए, आइडिया चाहिए। लानत है तुम्हारी दौलत पर जो हराम तरीके से कमाई जाए, लोगों को धोखा देकर के कमाई जाए। धोखा अपनों के साथ भी नहीं करना है, गैरों के साथ भी नहीं करना है। ये हमारी ईमानदारी, ये हमारी पहचान है, हमारी अदालत है, हमारा ये किरदार है जिसे देख करके लोग कलमा पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद अल्लाह, वाह वाह। बदल लो वक्तों को कुर्बान खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बज़्म मुस्तफा के लिए। आज हमारे नौजवान बड़ा अफसोस होता है, शब बरात मुबारक रात होती है, शब कद्र है, रात मुबारक होती है, कोई बाइक पर राइडिंग करता है, कोई बाकायदा खुराफात करता है, कोई सिगरेट पीते हुए रोड से गुजरता हुआ नजर आता है, कोई शराब के अड्डे पर है, कोई ज़िना के अड्डे पर है। उसके बाद कहते हैं मुसलमान बाकायदा पस्ती का शिकार है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे यार ये हमारे अमाल का बदला है, हमारे अपने करतूत है, जिसकी बुनियाद पर आज जालिम ताकतें हम पर मुसल्लत है। सुनो कुरान का ऐलान सच्चा है, अल्लाह का वादा सच्चा है। वान तुम लालूना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही गालिब आओगे, तुम्हारा ही कंट्रोल दुनिया पर होगा। लेकिन शर्त यह है कि पक्के और सच्चे मुसलमान बन जाओ, पक्के और सच्चे मोमिन बन जाओ। हमारे नौजवान कैसे हैं? माँ बाप की शान में गुस्ताखी करने वाले हमारे नौजवान नहीं है, शराब के अड्डे को आबाद करने वाले हमारे नौजवान नहीं है, ज़िना के अड्डे को आबाद करने वाले हमारे नौजवान नहीं है। पूरी पूरी रात इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर बाकायदा गंदी गंदी वीडियोज और फोटोज देखने वाले हमारे मुसलमान नहीं थे। पूरी रात अय्याशी करते हैं, एक ईयरफोन अपने कानों में लगा करके, दूसरा ईयरफोन अपने दोस्त के कान में लगा करके पूरी पूरी रात अय्याशी है। हज़रात गिरामी डर नहीं लगता, याद नहीं आता, एहसास नहीं होता कि एक न एक दिन दुनिया से आना है, हाय जाना है। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच चाहते हैं चार फिरते हैं। हज़रात गिरामी हमारे नौजवान ऐसे नहीं थे। कैसे थे हमारे नौजवान? कभी पूछो उस कलंदर लाहौरी से जिसे दुनिया डॉक्टर इकबाल के नाम से जानती और पहचानी है। डॉक्टर इकबाल ने जानते क्या कहा था? लोगों ने कहा था नौजवानों का आलम क्या है, हमारे नौजवान कैसे थे, हमारे नौजवान का किरदार क्या था, हमारे नौजवान का कैरेक्टर क्या था, हमारे नौजवान की पहचान क्या थी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था हमारे मुजाहिदीन कसम खुदा के जिस रास्ते पर चलते थे उनकी चलने की धमक से बाकायदा कुफ्र की जमीन में लर्जा पैदा हो जाता था। कैसर और किस्रा के बादशाह भी बाकायदा तड़पते हुए नजर आते थे। हमारे नौजवान ईमान के जज्बात के साथ इसके रसूल के पैकेट भर करके जब मुजाहिद किसी जमीन पर कदम रखता था कसम खुदा के किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि
सामने पढ़ करके उनका मुकाबला कर सके। लोग ठहराते हुए नजर आते थे। लोगों ने कहा डॉक्टर इकबाल जरा बताइए तो सही, आखिर नौजवानों का कैरेक्टर क्या था, उनकी सिफात क्या थी, उनकी क्वालिटियां क्या थी। पूछो डॉक्टर इकबाल से। डॉक्टर इकबाल ने कहा था हमारे नौजवान थे कैसे, सुनो, थे हम एक तेरे मार का राहों में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में नजस्ती थी जहांदारों के, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों के। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और जो मरते थे तो या रसूल अल्लाह तेरे नाम की अजमत के लिए चल न सकते थे। अगर जंग में और जाते थे पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख क्या चीज है, हम तो आपसे लड़ जाते थे, कश तो कश है, दरिया भी न छोड़े हमने, तेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हमारे नौजवान ऐसे, हमारे नौजवान रियाशी करने वाले आज जुलूस के नाम पर, मिलाद के नाम पर भी लोग ना जाने कैसा कैसा खुराफात करते हैं। उसके बाद बदनामी इस्लाम की होती है। लोग कहते हैं मुसलमान ऐसा करते हैं। खुदा के वास्ते आप ऐसी कोई हरकत ना क्या करो जिसकी वजह से इस्लाम बदनाम हो जाए, जिसकी वजह से मुसलमान की वजह से इस्लाम बदनाम हो। इसलिए ये अल्लाह का सच्चा मजहब है, तुम्हारी वजह से इस्लाम बदनाम हो, कितने अफसोस की बात है। इसलिए हज़रात गिरामी आज आओ तजदीद अहद करो। ये मुबारक दिन गुजरा है, 12 रबीउल शरीफ का दिन, प्यारे आका की विलादत का दिन गुजरा है। आज गुजरने के बाद तजदीद अहद करो। इंशाअल्लाह ताला हम कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारते हुए नजर आएंगे, हम कुरान के मुताबिक चलते हुए नजर आएंगे। माताकुम रसूल फखुशू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ रसूल तुम्हें दे उससे ले लो, जिस चीज से मना कर दे उससे रुक जाओ। इस पर अमल करते हुए नजर आएंगे, वरना याद रखना एक न एक दिन दुनिया से जाना है। क्या ठिकाना है जिंदगानी का, इंसान तो बुलबुला है पानी का। शेख सादी शिराजी ने कहा था इंसान कितना नादान है, जिंदगी ऐसे गुजारता है जैसे लगता है कभी मरना नहीं है, और मर के ऐसे चला जाता है जैसे लगता है कभी जिंदा ही नहीं था। ये इंसान का आलम है। इसलिए हज़रात गिरामी उस कब्र में जाने से पहले उसकी तैयारी करो। तुम मार्केट जाओ, शॉपिंग मॉल जाओ, सुपर मार्केट जाओ, तैयारी करते हो, कब्र में जाने से पहले उसकी तैयारी करो। अपनी नमाजों के जरिए, अपने बाकायदा और वसाइल के जरिए, माँ बाप का अदब के जरिए, अपने अखलाक के जरिए, अपने किरदार के जरिए अपने आप को ऐसा बनाओ कि कब्र में जाओ, प्यारे आका तशरीफ लाए तो देख करके मुस्कुरा दे तो बेड़ा पार होता हुआ नजर आए। इसलिए हज़रात गिरामी अपना किरदार ऐसा बनाओ, वरना कब्र का मामला बड़ा अजीब गरीब है। वो अंधेरा घर, अकेली जान, तन घुटता दिल उठता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। बस आखिरी जुमले आपकी समातों की दहलीज पर। हज़रात गिरामी कब्र का मामला बड़ा अजीब गरीब है। अगर नामे अमाल में नेकियां नहीं है, अल्लाह के रसूल का फरमान है जब बंदे के नामे अमाल में नेकियां नहीं होती, नमाजों की दौलत नहीं होती, रोज़ों की दौलत नहीं होती, हज और ज़कात की दौलत नहीं होती, ऐसा बंदा जब कब्र में उतारा जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदों पर एक ऐसा सांप मुसल्लत फरमा देता है, एक ऐसा अस्ताह मुसल्लत फरमा देता है, अगर वो एक फूंक मार दे तो सारी दुनिया के लोग हलाक हो जाए, सारी दुनिया के लोग तबाह बर्बाद हो जाए। अल्लाह अकबर, ऐसे इंसान को ऊपर अस्ताह मुसल्लत किया जाता है जिसने नमाजें ना पढ़ी हो, जिसने अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल ना किया हो। और गिरामी उन्हें एहसास नहीं होता। कब्र में जाने के बाद अजीब गरीब मामला है, मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद कोई परेशानी हाल नहीं है। वो तेरा दोस्त जो रातों रात अय्याशी करता था, एक ईयरफोन अपने कान में लगा करके रातों रात गंदी तस्वीरें देखा करता था, गंदी वीडियोस देखता था, तेरा जिगरी दोस्त आज कब्रिस्तान में एक लम्हा एक घंटे रुकने के लिए तैयार नहीं है। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार खुलते हैं। कब्र का मामला तो अजीब गरीब है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई याबर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। मौला कायनात मौला अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं जब वो कब्रिस्तान के करीब से गुजरते रोने लगते, दाढ़ी मुबारक तर हो जाती, लोग सवाल करते या अमीर अल मोमिनीन या खलीफतुल मुस्लिमीन, आप तो खलीफा है मुसलमानों के, आप तो अमीर है मुसलमानों के, आप रोते क्यों है? मौला कायनात एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था, दरअसल मामला ये है ये कब्र हश्र की पहली मंजिल है। जो यहाँ बच गया वो आगे भी बचता हुआ नजर आएगा, जो यहाँ फंस गया वो आगे भी फंसता हुआ नजर आएगा। और हश्र का मामला तो बड़ा अजीब गरीब है। आखिरी जुमले आपके दिलों तक तवज्जो के साथ, हश्र का मामला बड़ा अजीब गरीब है। सूरज सवा नेज़े पर है, जमीन तांबे की है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। कमा क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, यौमा यफ़िरुल मर'उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रि'इन मिनहुम यौमइज़िन शानिन युग़नीह। जिस दिन बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर देगा, शोहर अपनी बीवी को पहचानने से इनकार कर दे, जिस दिन भाई भाई को पहचानने से इनकार कर देगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। ऐसा आलम है, सूरज सवा नेज़े पर है। आज मई जून की गर्मी हमसे बर्दाश्त ना हो, आज एक डॉक्टर का इंजेक्शन से बर्दाश्त ना हो, आप थोड़ी सी सर्दी हमसे
सूरज सवा नेज़े पर है, जमीन तांबे की है, किसी का पसीना घुटने तक, किसी का पसीना टखने तक, कोई अपने पसीनों में डुबकियां लगा रहा होगा। ऐसा अजीब गरीब आलम है, खुदाए कहार है गज़ब पर, खुले है बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल हिसाब में है, कि सख्त मुश्किल हिसाब में है। हज़रात इकरामी क्या तैयारी की है हमने, क्या है हमारे नामे अमाल में, क्या हमने हमारे साले इकट्ठा किए हैं? नहीं, हमारे पास तो सिर्फ गुनाह ही गुनाह है, खुराफाती खुराफात है। आप दूसरों से लड़ाई, घर में लड़ाई, दूसरों से जलन, दूसरों से हसद, दूसरों से लड़ाई, दूसरों से मुकदमा, आज सारी बुराइयां हमारे अंदर है। हज़रात इकरामी हमारा काम नहीं है, हमारा काम है क्या? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों की तरफ भेजा गया है। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म दो, उनको बुराइयों से रोको। ये तुम्हारी पहचान है, ये मर्द मोमिन की पहचान है, ये मुसलमानों की पहचान है, ये खैर उम्मत की पहचान है। लेकिन हम कहाँ चले गए? आज तो खैर हमें ताड़ा देते हैं, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। यार आज जश्न मिलादुन नबी आपने मनाया है, मैं अलगौसिया कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपसे गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से आपने मिलाद के महफिल को सजाया है, इसी तरीके से अपने सजदों से अल्लाह के घर को भी सजाइए, अल्लाह के घर को भी आबाद करें। और याद रखना, जिसका सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है, कसम खुदा की दुनिया में किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि उसके सर को झुका सके। जो अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाता है, अल्लाह उसके सर को बुलंद कर दिया करता है। जो अल्लाह की बारगाह में सर नहीं झुकाता ना, उसका सर कभी इसके सामने कभी उसके सामने झुकता हुआ नजर आता है। इसलिए ज़ात ग्रामी एक बन जाओ, नेक बन जाओ। खैर उम्मत का टाइटल तुम्हारे हवाले है, जो खैर उम्मत बनने की कोशिश करो। और आज यह हित करो कि इंशाअल्लाह ताला हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, अपने माँ बाप के साथ अदब से पेश आएंगे, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाएंगे, इंजीनियर भी बनाएंगे, प्रोफेसर भी बनाएंगे, लॉयर भी बनाएंगे। लेकिन खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा के तहत सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ा करके एक पक्का और सच्चा मुसलमान बनाते हुए नजर आएंगे, अकायदे अहले सुन्नत सिखाएंगे, ज़रूरियात दीन सिखाएंगे, ताकि ज़माना तुम्हें देखे, जुलूस में सादा नारा तुम्हें ना लगाना पड़े, तुम्हें ऐलान ना करना पड़े या हुसैन का नारा ना लगाना पड़े, बल्कि ज़माना तुम्हें देखे तो देख कर कहे देखो हुसैनी गुलाम जा रहा है, गुलाम मुस्तफा जा रहा है, गौसे पाक का चाहने वाला जा रहा है, गौसे पाक का मानने वाला जा रहा है, देखो ये नाम रज़ा खान का मानने वाला जा रहा है। हज़रात ग्रामी आखिरी जुमला, बस 30 सेकंड में तकरीर मुकम्मल। हमारे नौजवानों का कोई एम नहीं है, हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, हमारी जिंदगी का कोई मतमे नजर नहीं है। जिंदगी गुजारनी कैसे है? 20 साल का नौजवान है, क्या गुजारना? अरे अभी तो हमारे बाप के पास पैसा है, हम तो जिंदगी गुजार लेंगे, आगे देखा जाएगा। हमारी जिंदगी का कोई एम नहीं है, हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, कोई मतमे नजर नहीं है। हज़रात इकरामी माता तुम रसूल फखुज़ूहु मा नहाकुम अन्हु फंतहू के तहत हुज़ूर ताज शरिया ने मफ़हूम को शेर की सिरत में पेश किया है और इरशाद फरमाया, ऐ मिल्लत के नौजवानों, ऐ इमाम अहमद रज़ा खान के गुलामों, ऐ गौसे पाक के दीवानों, ऐ प्यारे आका के उम्मतियों, ऐ नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी का एम क्या है? जिंदगी का मकसद क्या है? जिंदगी का मतमे नजर क्या है? तुम्हें खबर नहीं? सुनो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसल के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे आका के विलादत की खुशी मनाने के साथ साथ प्यारे आका के फरामीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल-गौसिया कमेटी इसके जुमला जिम्मेदारान के इल्म में, अमल में, उम्र में, सेहत में, फज़ल में, कमाल में, रोजगार में बरकत अता फरमाए। जितने उलमा आइम्मा हमारे बड़े छोटे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मौला सबकी हिफाजत फरमाए। हमारे मस्जिदों की, हमारी खानकाहों की, हमारे उलमा की, हमारे आइम्मा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह की साथ पर भरोसे को मजबूत रखें। तवक्कल तो अल्लाह का नारा लगाने के बाद अल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद का नारा लगा करके अल्लाह उसके रसूल की साथ पर भरोसा रखें। एहसास कमतरी का शिकार ना हो। इससे खराब दौर फिरौन का दौर था, नमरूद का दौर था, शद्दाद का दौर था, कारून का दौर था, हलाकू खान का दौर था। अरे यार, इससे खराब दौर अभी नहीं आया है, इसलिए एहसास कमतरी का शिकार ना हो। अपने नौजवानों को हौसला दें, अपने भाइयों को हौसला दें। प्यारे आका की सुन्नत को चेहरे पे सजाएं, इस्लामी तशख़्ख़ुस को बनाएं, मदरसों को आबाद करें, मस्जिदों को आबाद करें। प्यारे
کے نام کا نامہ دھرن کریں اور شان کے ساتھ کہیں نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی۔ واہ واہ واخر کلماتی الحمدللہ رب العالمین۔